Bismillahirrahmanirrahim. We are starting lesson 1 from section prose, namely Durusun min al-Quran al-Kareem, lessons from the Noble Quran. In this lesson, you have 4 surahs: Suratul Fatiha, Suratul Asr, Suratul Kawsar, and Suratul Ikhlas. These 4 surahs we have to study. Before going towards surahs, first we will take a brief introduction of the Quran. What is the glorious Quran? What is its meaning? What is the meaning of Quran? Quran is a word on the pattern for all. Okay. For all is the pattern of Quran. It is an exaggerative tense. Means it is made from the original words, original letters, Khaf, Ra, Khara'a, Khaf, Ra, and Hamza. Khara'a means to read, and Quran meaning the most readable book. Okay, it is a fact that in the whole world, in the whole world, on the surface of the earth, there is no book as readable as the Quran. The most readable book on the surface of the earth is the glorious Quran. कुरान एक ऐसी किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है सारी दुनिया में. कुरान के माने क्या है? कुरान के माने हैं ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब, the most readable book. So durus means lessons, and lesson means we learn from it. Lesson meaning something we learn from a particular event or particular story, that is known as lesson. Durus is the plural of dars. Dars means lesson, durus means lessons. And min al-Quran al-Kareem, we will take some lessons from the Noble Quran. Okay? Here, al-Quranul Kareem huwa akhiru kalamillahi subhanahu wa ta'ala. The Noble Quran is the last and final word of Allah subhanahu wa ta'ala. नज़ल अला क़ल्बिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवासितति सय्यिदुना जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ी सलासति व इश्रीना आमन नजमन. It was revealed on the heart of the Prophet through the angel called Jibrail in 23 years of time, 23 years. Slowly and gradually it was revealed on the heart of the Prophet in a span of 23 years through the angel called Jibrail. कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है. ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से. 23 साल की मुद्दत में थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नाजिल किया. ठीक है. अल कुरानुल मजीदु नूरुन व शिफाउन व हुदन व रहमतुन व बुशरा लिल जमी. The glorious Quran is the light and guidance, a cure and mercy and glad tidings for all. कुरान मजीद नूर है, शिफा है, हिदायत है, रहमत है और खुशखबरी है तमाम लोगों के लिए. वल अमलु बिही फौजुन व फलाहुन फिद दुनिया वल आखिरा. Practicing on its teaching leads to success and salvation in this world and after here. इस पर अमल करना, कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना कामयाबी व कामरानी का ज़ामिन है और जो है नजात का ज़वाइस है, कामयाबी है, नजात है दुनिया में भी और आखिरत में भी. वल गफलतु अन्हा खस्सारतुन व नुक़सानुन फिद दारैन. Whereas living a neglectful life from the Quran will lead to destruction and loss in both the worlds.
The human beings are in the stage of loss in this world and after here by neglecting the teachings of the Quran. कुरान मजीद से गफलत बरतना दुनिया और आखिरत में नुकसान का बाइस है, खसारे का बाइस है। वल कुरान शरीफ मुश्तमिल अला मिअतुन व अर्बा अशरता सूरतन फ़अव्वलुहा अल फातिहा व आखिरुहा सूरतुन नास। The Noble Quran comprised of 114 surahs. Okay, the Noble Quran comprised of 114 chapters. The first one is Surah Al-Fatiha and the last one is Surah An-Nas. وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ مُقَدِّمَةٌ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. The chapter of Fatiha is the preface of the Quran, preface of the Noble Quran. सूरे फातिहा जो है कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, जिसमें से पहला सूरा सूरे फातिहा है और आखिरी सूरा सूरे नास है। ठीक है, फातिहतुल किताबी मुक़द्दिमतुल लिल कुरानिल करीम, सूरे फातिहा मुक़द्दिमा है, प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है कुरान मजीद का। कुरान मजीद को अगर प्रिसाइज कंप्रेस कर दिया जाए तो वो सूरे फातिहा में आ गया है। वद्दुआउ मिनल अब्दी ज़ईफ़ इला रब्बिल जलील, इट इज़ अ invocation from the weak slave to the Almighty, to the glorious Lord. ये एक दुआ है अब्द ज़ईफ़ से, बंदे की जानिब से रब्ब जलील की तरफ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से एक दुआ भी है, ये सूरह फातिहा एक दुआ है। वो बक़ियतुन सुवरिन ए अरबा व मियतुन व सलासता अशरा सूरतन जवाबु हाली हादत दुआई मिनल अब्दी। Remaining 113 surahs are the answer for this supplication of the slave. जो दुआ बंदे ने मांगी है उसका जवाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 113 सूरतों में दिया है। ठीक है, 113 सूरतें जवाब है बंदे की दुआ का जो वो सूरह फातिहा में मांगता है। वफ़ी हादत दरसी नदरुसु सूरत अल फातिहा व सलासा सुवरिन वहिया अल अस्र वल कौसर वल इखलास। In this lesson we will study Surah Fatiha and 3 other surahs. Those are Al Asr, Al Kawthar and Al Ikhlas. These 4 surahs we will study. Surah number 1, Suratul Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. In the name of Allah. What is the meaning of Al-Fatiha? The meaning of Al-Fatiha is to open, to begin, to start. सूरह फातिहा के माने हम इस सबक में क्या कर रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 3 सूरह भी पढ़ेंगे। वो है सूरह असर, कौसर और इखलास। ये 3 सूरह भी हम पढ़ेंगे। सूरह फातिहा सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। सूरह फातिहा के माने क्या है? फातिहा के माने हैं ओपनिंग, खोलना, इफ्तिताह करना, शुरुआत करना, इनॉग्रेशन। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये हुक्म है कि जब कभी कुरान मजीद शुरू किया जाए तो तावुज़ और तस्मिया पढ़ी जाए। तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I take refuge of Allah from the distorted devil and I begin in the name of Allah, the most benevolent and the most merciful, the most gracious and the most merciful. Now the surah starts with the praise of the Lord. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise belongs to Allah, the Lord of all the worlds, the sustainer of all the worlds. मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे आलमीन का परवरदिगार है। अर्रहमान अर्रहीम,
द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल, बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, द ओनर ऑफ डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, हमको सीधा रास्ता दिखा। और बाज़ मरतबा जो है इसका तर्जुमा हमको सीधा रास्ता चला के भी आते हैं, ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, और शो अस द स्ट्रेट पाथ के भी आते हैं। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, द पाथ ऑफ दोज whom you have blessed, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिनसे तू राजी और खुश हो गया। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, नॉट ऑफ दोज हु अर्नड योर एंगर, वला ज़ालिन, एंड दोज हु वेंट एस्ट्रे। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, उन लोगों का रास्ता न चला जिनसे तू गुस्सा हुआ, जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। वलज़ालिन, और न गुमराह लोगों का रास्ता हमको चला। आमीन, हमारी इस दुआ को कबूल कर, एक्सेप्ट आवर प्रेयर। लेट अस टेक अ स्मॉल कमेंट्री ऑफ, शॉर्ट कमेंट्री ऑफ दिस सूरा, अत-तफ़सीरुल वजीज़, सूरह फातिहा की मुख्तसर तफसीर। हादी सूरतु शरीफतु नज़लत बिमक्का अव्वलन हीना फ़ुरिज़तिस सलातु, सुम्मा नज़लत बिल मदीनतिल मुनव्वरति हीना तहव्वलतिल क़िबलतु इलल काबती। ठीक है। दिस सूरा was revealed in Makkah first, where the prayer became obligatory. Then it was revealed in Medina, where the direction Kaaba direction changes from Kaaba to from Baitul Maqdis to Kaaba. ये सूरा पहले मक्के में नाजिल हुआ, पहले मक्के में नाजिल हुआ, फिर उसके बाद जो है मक्के में क्या हुआ था, मक्के में नमाज फ़र्ज हुई, और फिर मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुआ। मदीने में क्या हुआ, मदीने में जो है क़िबला बदल गया। पहले बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज अदा की जाती थी, अब काबे की तरफ अदा की जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 महीने तक जो है बैतुल मक़दिस की तरफ जो है नमाज अदा किए मदीने में जाने के बाद। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक क़िबला बदल गया, काबे की तरफ कर दी। फ़ीहा सबु आयातीन, फ़ीहा सबु आयातीन, there are 7 verses in it. It contains 7 verses, means सूरह फातिहा contains 7 verses. सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। वलहा अस्माउन अदीदतुन मिनहा, it has many names. Among them are, it has many names like Ummul Kitab. Ummul Kitab means the essence of the book, the spirit of the book. सूरह फातिहा के कई नाम हैं। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं और इसके बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से उम्मुल किताब एक नाम है। उम्मुल किताब बोले तो किताब की जान, असल किताब बोले जैसा, एसेंस ऑफ द, किताब की रूह, कुरान मजीद की रूह है ये सूरह फातिहा। बहुत बड़ी फजीलत है सूरह फातिहा की। फातिहतुल किताब, ओपनर ऑफ द बुक। सूरह फातिहा का नाम और एक नाम क्या है, ओपनर ऑफ द बुक, किताब का खोलने वाला। जैसे हम कुरान मजीद खोलते हैं तो सबसे पहले सूरह फातिहा होता है, इसलिए इसका नाम ओपनर ऑफ द बुक है। सूरतुल वाफिया, सूरतुल वाफिया किसे कहते हैं? सूरतुल वाफिया यानी कि देखिए के माने हैं, फातिहतुल ओपनर ऑफ द बुक, सूरतुल वाफिया के माने जो है सफिशिएंट समझिए, सफिशिएंट। सूरतुल काफिया,
काफ़ी होने वाला सूरा, द सफिशिएंट, और वाफिया भी सिमिलर मीनिंग है तकरीबन। सूरतुल कंज, द ट्रेजर। सूरतुल असास, द बेस, द फाउंडेशन। ये तमाम नाम सूरह फातिहा के हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन फ़ज़ीलति सूरतिल फातिहा, the messenger of Allah said about the virtues of फातिहा, सूरह फातिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा की फजीलत में फरमाए हैं, ला सलाता लिमन लम यक़रा बि फातिहतिल किताब व फातिहतुल किताबी शिफ़ाउन मिन कुल्ली दाइन। There is no prayer without the recitation of opener of the book, and opener of the book is a cure for every disease. कोई नमाज नहीं है बगैर सूरह फातिहा की तिलावत के, और सूरह फातिहा जो है शिफा है हर बीमारी के लिए। ये हदीस शरीफ है। If you have materials, then you may look into the material as well. I am reading from the page 33 of your college material. वफ़िल हकीकती हादिही सूरतु दुआउन मिनल अब्दी इलल माबूद। In fact, this surah is a invocation from the slave to the Lord. ये सूरा जो है हकीकत में एक दुआ है, बंदा अपने माबूद से दुआ कर रहा है। ये सूरा असल में ऐसा है। वसुआलुन मिनल फ़कीर इलल गनी, it is a supplication from the poor to the rich. ये सूरा जो है एक क्या है, ये सूरा जो है फ़कीर का सवाल है, अल्लाह ताला से मांगना है। इट इज़ आस्किंग फ्रॉम द अलमाइटी लॉर्ड, अल्लाह ताला से मांगना है। फ़कीर कौन है? फ़कीर जो है बंदा है, और अमीर कौन है? अमीर जो है अल्लाह है। वफ़ीहा तालीमु आदाबि दुआ इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, it contains the teaching of invocation and etiquettes of supplication to the Lord, the glorious and the almighty Lord. इस सूरे में दुआ की तालीम और उसके तरीक़ा आदाब अल्लाह बताए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ कैसे मांगना है वो बताया गया है। वहादी सूरतुल करीमतु ताल्लमना मनहज बिदायतिल दुआई। दिस सूरा teaches us, this surah taught us the method of asking, the method of supplication. That is, huwa bil hamdi. First we have to praise our Lord. Wa thanai Allah Ta'ala, Allahu Azza Jalla. Thumman nas'al matlubuna. First we have to praise our Lord, then we have to ask what we need. From what we need, we have to ask. First we have to praise Allah Subhanahu wa Ta'ala. इस सूरे में दुआ का तरीक़ा बताया गया है, अल्लाह ताला से मांगने का तरीक़ा बताया गया है। वो ये है कि ये सूरा हमको सिखाता है दुआ का तरीक़ा। दुआ का तरीक़ा क्या है? सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, उसकी सना करेंगे, उसके बाद हमको जो है जो मतलूब है, हमको जो चाहिए वो हम अल्लाह से मांगेंगे। इन्नल इंसान जाहिलुन ला यारिफु अनिल गद। Surely the human beings are unaware what is going to happen tomorrow. इंसान को मालूम ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, वो जाहिल है। कल क्या होगा उसको मालूम नहीं है। वला यारिफु मा हुवा काइनुन फी हादिहि दुनिया व फिल आखिरा। He is unaware of the happenings of this world and after here. He don't know about the occurrences, circumstances of this world and after death. What are the circumstances he will face? Here, इंसान जाहिल है, उसको मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है, और वो इस बात से भी वाकिफ नहीं है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है
और आखिरत में क्या होगा, what is happening in this world and what will happen after a year. He is unaware, totally unaware. वलिहाजा मन्नल्लाहु ताला अलैना बिहिदायतिना इला मक़सूदिना. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala bestowed his guidance on us and guided us towards our goal and target. He has guided us towards our goal. He has guided us towards our target and objective. इंसान इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको हिदायत दिया, हमारे ऊपर ये एहसान किया कि हमको हिदायत दिया, और हमारा जो मकसूद है, हमारा जो मतलूब है और हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मकसद है, उसकी तरफ हमको रहनुमाई फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वहुवा तलबुस सिराती अल-मुस्तकीम लिअन्नहु हुवा सिरातुल अंबियाई वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन. That is what we ask the straight path, because the straight path is the path of the prophets, the straight path is the path of the true people, the straight path is the path of the martyrs, and the straight path is the path of the pious people. वो ये है कि अल्लाह ताला से हम सीधा रास्ता मांगे. सीधा रास्ता क्या है? वो सीधा रास्ता जो है नबियों का सीधा रास्ता है, सिद्दीकीन का सीधा रास्ता है, शोहदा का सीधा रास्ता है, और सालिहीन नेक बंदों का सीधा रास्ता है. फमन सलका तरीक़हुम फ़ाज़ा बिल फ़लाहि फ़िद दारैन. Whoever follows their path will become successful in both the worlds. जो कोई इनके तरीक़े पर चलेगा, अपनाएगा, वो दुनिया और आखिरत में फलाह पाएगा, कामयाब हो जाएगा. वफ़ी निहायती सूरती नक़ूलु आमीन फ़मानाहु या अल्लाह तक़ब्बल दुआअना. At the end of the surah we say Ameen. It means, O Lord, O our Allah, accept our prayer. Accept our prayer. सूरे के आखिर में हम आमीन कहते हैं, जिसके माने हैं ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर. This was the short commentary and explanation of Surah Al-Fatiha. Got it? Any doubt? Okay, let's take a short recap of the Surah Al-Fatiha. All praise belongs to Allah, the sustainer of the worlds, the most gracious, the most merciful, the owner of Day of Judgment. You alone we worship and you alone we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those whom you have blessed, not the path of those who earned your anger and nor of those who went astray. In this surah was revealed in Makkah first, where prayer salah became obligatory. Then it was revealed in Medina, where the direction Qibla changed to Kaaba from Baitul Maqdis. It has 7 verses. It has many names. A few of them are Ummul Kitab, the essence of the book; Fatihatul Kitab, the opener of the book; Suratul Shifa, the cure; Suratul Kafiyah, the sufficient; Suratul Kanz, the treasure; the Suratul Asas, the base or foundation; Suratul Hamd, the praise, etc. The Prophet of Allah said, there is no prayer without the recitation of Surah Al-Fatiha, and it is cure for every disease. It is also being asked to seek a straight path from Allah. It is the path of the Prophet, the true people, the martyrs, and the pious ones. Whoever follow their path will become successful in this world and after here. At the end of surah we say Ameen, which means accept our supplication. ठीक है. सूरह फातिहा में क्या बोल रहे हैं? तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे आलमीन का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है,
क़यामत के दिन का मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, हमको सीधा रास्ता चला। उनका रास्ता जिनसे तू राज़ी और खुश हुआ, ना उनका रास्ता जिन पर तू गुस्सा हुआ और जो गुमराह हो गए। ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ पहले, बाद में फिर जहाँ पर नमाज फ़र्ज हुई, और फिर बाद में मदीने में नाजिल हुआ जहाँ पर क़िबला बैतुल मक़दिस से काबे की तरफ हो गया। इसमें 7 आयतें हैं, इसके चंद नाम हैं जिसमें से उम्मुल किताब नाम है, और फातिहतुल किताब, सूरतुल शिफा, सूरतुल काफ़िया, सूरतुल कंज़, सूरतुल असास, सूरतुल हम्द वगैरह इसके नाम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा की फ़जीलत में फ़रमाए कि कोई नमाज नहीं है बग़ैर सूरह फातिहा की तिलावत के, और सूरह फातिहा जो है हर बीमारी के लिए शिफा है। ये भी हमसे कहा गया है कि हमको सीधा रास्ता अल्लाह से मांगना चाहिए। वो सीधा रास्ता जो है नबियों का है, सिद्दीकीन का है, शुहदा का है और सालिहीन का है। जो कोई इनके रास्ते पे चलेगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगा। और आखिर में हम सूरह के आखिर में हम आमीन कहते हैं, जिसके माने हैं ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर। गॉट इट?